কথা চালু হওয়ার যে স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু যেসব জায়গায় কিছু চালু হয়েছে কিংবা পেশা চালু হয়েছে তারপরেও সেসব জায়গায় যদি ইমপ্লিমেন্ট না হয়, কারণ আমরা এই পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে গ্রামসভা মানে ফরেস্টল্যান্ড অ্যাক্ট অনুযায়ী যে গ্রামসভা হওয়ার কথা সেই জায়গাও আমরা এখানেও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, তারপরেও এই শিশুদের কথা কিভাবে আমরা মানে চিন্তা ভাবনা করবো। আমরা বর্তমান যে পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, এই যে গ্রামসভার কথা ফরেস্টল্যান্ড অ্যাক্ট অনুযায়ী যে গ্রামসভা, সেই গ্রামসভা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে। কারণ আমরা আজকে স্যার যে জায়গায় দাঁড়িয়েছি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলা, সেই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দুটো জায়গায় আমরা গ্রামসভা তৈরি করেছি। কোথাও না কোথাও যে ইমপ্লিমেন্টেশনের যে পদ্ধতি কোথাও না কোথাও স্যার আটকে আছে। এটা স্যার কিভাবে বাস্তবায়িত করবো, মানে গ্রামসভার সর্বোচ্চ মানে পদাধিকার কিভাবে বাস্তবে ইমপ্লিমেন্ট করবে এটা বলবো। দেখুন নাম্বারে আমি যে জিনিসগুলো বলছি আপনাদেরকে তা সামান্য ডেপথে যাবে। গ্রাম সভা দু ধরনের, একটা শিডিউল এরিয়ার গ্রাম সভা, একটা নর্মাল গ্রাম সভা। ঠিক আছে, এই যে আপনারা বলছেন কি সে এমএলএ হলো, সে মন্ত্রী হলো, সে মন্ত্রী বা রাজ্যপাল, আপনাদেরকে জানতে হবে দেশের ইতিহাস। আপনারা আরএসএস এর নাম শুনেছেন? আরএসএস শুনেছেন তো? আরএসএস এর হিডেন এজেন্ডা কি? হিডেন মানে গুপ্ত এজেন্ডা। और गुप्त एजेंडा আছে কত লোক জানেন তো? আরএসএস টিল টুডে, আমি তো মানে সামান্য বললে খারাপ লাগবে, আপনারা ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহাল যখন মাত্র একটাই ছিল, এনএন হেমব্রম দিসম পারগানা এবং রামচন্দ্র মুর্মু দিসম পারগানা। আমি বলেছিলাম রেজিস্ট্রেশন করবেন না আপনারা, কেউ যদি আছেন ক্ষমা করবেন, আমি আলোচনা করছি না, বাট ইট ইজ ফ্যাক্ট। আমি বললাম আপনারা রেজিস্ট্রেশন করবেন না, তো বলছে কি না রেজিস্ট্রেশন তো করতে। আমি বলছি কেন? বলছে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট হবে না। কথা শুনলো না। তারপর আবার বললাম, কেঞ্জর থেকে আসছিলাম আমরা, কেঞ্জরে আমি বললাম ইন্টারন্যাশনাল সান্থাল কাউন্সিল রেজিস্ট্রেশন নেই, কিন্তু তার দুটো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। কেমন করে হলো? আরএসএস এর কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই, কিন্তু আজ যত বিজেপি সরকার, মোদি হোক, এমএলএ হোক বা এমপি হোক, আরএসএস এর কন্ট্রোলে। ভুল বলছি? প্রত্যেক এমএলএ এমপির পাশে দুটো সেক্রেটারি আরএসএস লোক থাকে। রাষ্ট্রপতি আপনার হলে কি হবে, ওখানে আরএসএস লোক বসে, ওরা বারবার দেখছে নরেশ মুর্মু ম্যাডামকে তো কিছু বুদ্ধি দিচ্ছে না, কথা বলছেন তো। টেকনিক্যাল জিনিসটা ওটাই বলছি কি, আমরা এটা হলো না। আমি বলছি আপনারা ইতিহাস সামান্য পড়ুন। আমি তো রাহুল গান্ধী হলে বাতাবে, আপনি যদি আরটিআই করবেন না, ঝাড়খণ্ডের কোনো জায়গাতে কোনো অফিসারকে, एसडीओ के বা डीएम के, वो लिखे देवे कि पेशा कानून लागू है। ऑफिसर लिख नहीं सकता है कि कानून लागू नहीं है। वही चीज हम बोले कि बार बार टेक्निकल लावा, क्यों लागू नहीं? लागू है। कैसा लागू है? आपको मोबाइल दे दिया, बैटरी तो निकाल दिया है। मोबाइल आपको दे दिया है मगर मोबाइल से बैटरी तो नहीं है, तो किसका जिम्मेदारी था? एमएलए एमपी का। एमएलए एमपी नहीं किया, हम तभी भी बता रहे थे। ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है? घोड़ा होता है, घोड़ा। इसलिए हम बोलते हैं कि घोड़ा में चढ़ना और घुड़सवारी करना दो अलग। सादम कामसाव और सादम रे देजो। सादम तो करना तो आईएएस आईपीएस, कामसाव गान में आमी एमएलए एमपी। कामसाव आएगा तो नीचे चला जाएगा, एमएलए एमपी नहीं कर रहा है, हम लोग कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर रहा है। इसीलिए हम एक्सरे करने बोलो। आप लोग सुने होंगे वेदांता प्रोजेक्ट, हमारे रोबिन बाबू বেদান্তা প্রজেক্ট, কত 600 করোড় প্রজেক্ট ছিল। তো আমাদেরকে ডাকা হলো ভুবনেশ্বরে, তখন রামদালদা অনেন আদিবাসী আয় হড়ক বুড়ি রাখ পালেন উনা খাটো উনা কম লুগড়ি হড়ক বঞ্জের গাটবা उनको को राह तो रे मैंने बना पूरे बुरु हेडु कतले दोया पूरे हेडु बाने कोई बाले चलाओ छो। राहुल गांधी घुसा, कोई लीडर, कोई आदिवासी, नो आदिवासी लीडर, राहुल गांधी अपने घुसा और दिल्ली में जाके बोला कि आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है। हाईकोर्ट में संज्ञान लिया गया, हाईकोर्ट में केस किया गया, प्रोजेक्ट बंद हो गया क्योंकि शेड्यूल एरिया। तो ऐसा नहीं है कि लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो जिसको हाकने का, जहां डंगरी की हिल घुर में ना कहा दिया, जहां ठेगा में ना जपी रखा, तो उत्तराखंड का प्रोजेक्ट कैसे बंद हुआ? हम तो बोल रहे हैं कि कोई भी आईएएस को पूछिए आरटीआई से, वो बोलेगा पैसा लागू है। तो लागू है मगर हाकने का जो अधिकार जिसको है, आपका बात क्यों सुनेगा? उसको सुनना है, इसलिए विधायक प्रतिनिधि, इसलिए विधायक, इसलिए एमएलए एमपी, पर वो तो बोलवे नहीं कर रहा। और एक इसी तरह का फॉरेस्ट, आप लोग को पता है एसटी एससी एट्रोसिटीज एक्ट जानकारी है, ठीक है? जिस समय बीच में उसको भी ऐसी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जैसे एमपी लोग गरजने लगा, रामविलास पासवान में गरजा,
फिर पीछे हट गया, फिर लागू हुआ अभी हूबहू, नहीं तो बोल दिया था नहीं ये गलत है। तो हम लोग सोए रहेंगे, हमारा एमपी सोए रहेगा तो कानून रहती। इसलिए भारत देश का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बोला था कि देश का संविधान और नियम जितना भी बढ़िया हो, अगर अमल करने वाला पदाधिकारी ईमानदार नहीं होगा तो हर कानून हर संविधान बेकार है। तो घूम फिर के वही आएगा। यही हम लोग का दुर्भाग्य है, वो झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, हर जगह वही दुर्भाग्य है। आज हम बोलते हैं कि हमारा अगर सोशल सिस्टम, वही पेशा कानून के बात है। पेशा कानून में चूंकि शेड्यूल एरिया के लिए बना, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल है, पेशा कानून स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी तरह का जमीन गलत तरीका से यदि खरीदा गया, गलत तरीका से यदि कब्जा किया गया, गलत तरीका से यदि हस्तांतरण हुआ, गलत तरीका से यदि अतिक्रमण हुआ, संपूर्ण अधिकार है ग्राम सभा को उसको वापसी दोबारा वापस करने का। उसमें डीएम को पावर नहीं दिया, डीसी को पावर नहीं दिया, तो आपके पक्ष में कानून बना है, लिखा है, लागू भी है, आप अनुपालन करने का हिम्मत नहीं है। हम झारखंड में मात्र एक मस्जिद नहीं है, मतलब अब वो जहाँ मस्जिदों में ना, वो ये लातेहार में मतलब जैसे हम लोग संथाल में मस्जिद बोलते हैं, जैसे ये में मुंडा बोलता है, एक मात्र उसको हम हीरो निकला, 12 बार जेल किया, 12 बार। और जानते हैं जिसका फल क्या हुआ? थाना का बिल्डिंग भी बनता है तो थाना वाला ओ मस्जिद से बकायदा रसीद कटा के बालू लेता, क्योंकि वो हिम्मत किया लागू कराने का, अड़ गया, 12 बार जेल गया, बैरिकेड लगाया हुआ गांव में, उस गांव से घुसेगा ट्रक, जो भी घुसेगा बैरिकेड में खड़ा रहेगा, गांव का लोग टैक्स कटेगा। हिम्मत है, अब पास कानून रखा होगा, राइफल दिया हुआ, गोली चलाने का नहीं है तो हिम्मत होना चाहिए ना। 12 बार जेल की था, किसी भी समय 250 आदमी लेडीज जेंट्स इकट्ठा हो जाता। आज वहां लागू है उस गांव लातेहार में। तो वही हम भीमराव वाला बात बोले कि जितना बढ़िया भी कानून होगा, लागू करने ईमानदार नहीं है तो, और जितना बड़ा भी हथियार आपको देंगे, AK-47 दे देंगे, गोली चलाने की हिम्मत नहीं है तो क्या कीजिएगा। धन्यवाद। लागू আছে ইমপ্লিমেন্ট আমরা যে স্যার ফর্মালিটি মাধ্যমে করেছি, যে সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা করেছি তার কি গ্রাফসভা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে গেছে 2006 পর থেকে। ওটাই আপনাদের বারবার বলছি, সরকারের অফিসার গুলোকে সে এসডিও হোক বা সিও হোক, আগে আরটিআই এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করুন, ওকে আগে বলান, আরটিআই এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করুন এই স্থিতিতে আপনার কি লাগু আছে কি না, সে জবাব নিশ্চয়ই দিবে, কেন আরটিআই না হলে ফাইন লিখে নেবে ওর। তো সেই ক্ষেত্রে তো ওর কথাই তখন তার জন্য বললাম বাকচালের কথা, आरटीआई यूज नहीं कीजिएगा वो तो ऐसे ढुलमुल होते रहेगा। जैसे हम मितन बाबू को इसलिए बोल रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट खत्म हो रहा है, जरूर जो पकड़ा खत्म हो रहा है, मगर आरटीआई कीजिए कि ये सर्टिफिकेट किसने इशू किया है। फेक सर्टिफिकेट में कुछ नहीं बोलना है। और आरटीआई ऐसा चीज है, कोई जरूरी नहीं कि आदिवासी होना चाहिए, देश का कोई भी नागरिक कर सकता है आरटीआई। सीधा सीधे ये लिखना है कि ये सर्टिफिकेट जो इशू है इस एसडीओ कार्यालय से, ये कौन पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, किसने इशू किया। देखिए क्या जवाब देगा, जवाब देना पड़ेगा ना। वो लिखेगा कि ये अफसर ने इशू किया है, नहीं तो लिखेगा इस पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन के आधार पर इशू किया। ठीक है, आप उसको कोर्ट में घसीट दीजिए, नौकरी खत्म, देखेगा बंद हो जाएगा सब, 5 आदमी का नौकरी खत्म कर दीजिए, बाप बाप करने लगेगा। हम इसीलिए बोले कि आरटीआई हथियार पाले, उसी का कानून से उसको छेकिए पाले, तब फिर उस पर हमला कीजिए। ওটাই তো বলছি, শিডিউল এরিয়া আলাদা, নন শিডিউল এরিয়া আলাদা। তার জন্যই তো ওই যে পেশা বললাম, পেশা হচ্ছে শিডিউল এরিয়া, ওটাই হচ্ছে পঞ্চায়েত এক্সটেনশনের শিডিউল এরিয়া, ওটা নন শিডিউল এরিয়াতে হবে না। কিন্তু যেহেতু পুরো ভারতবর্ষে আদিবাসী অনেক স্টেটে আছে, আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গলের শিডিউল এরিয়া নয়, তাও পিএসসি আছে, কথা বলছেন তো। তো সেই হিসাবে তার জন্য আমরা চাই কি ভাই, এটা আগে ধলভূম মানভূম ওয়েস্ট বেঙ্গলের অনেক ডিস্ট্রিক্ট গুলো আমি নিতন বাবুকে বলে রেখেছি, 1874 যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল তখন প্রথম শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাক্ট তৈরি হলো। ওই শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাক্টের আধারেই ফিফথ শিডিউলটা তৈরি হয়েছে। তো ওই সময় থেকে মানে বিফোর আপনার বিহার, আগে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলই ছিল, মাত্র একটা, এখান থেকে বিহার আলাদা হলো, আবার উড়িষ্যা। তো বিহার আলাদা হওয়ার আগে পর্যন্ত যে শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাক্ট হিসাবে কোন কোন ব্লক, এমন শিডিউল এমন নয় যে পুরো জেলেও হবে, এমনও হয় কি একটা ডিস্ট্রিক্টের একটা ব্লকের 12টা পঞ্চায়েত শিডিউল, এমন না যে পুরো ডিস্ট্রিক্টেই হতে পারে, এমনও হয় কি পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্টের 2টো ব্লকটা শিডিউলে আছে। তো তাই
ওই যে শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাক্ট যেটা বিহার আলাদা হবার আগে কোন কোন ব্লক আপনার শিডিউল ডিস্ট্রিক্টে ছিল সেই হিসাবে আমাদের লড়তে হবে। इस पर इसको कैसे लेना है, कोई भी अधिकार को, जैसे है ना, बच्चा जब तक रोता नहीं, नरेश बाबू बोले माता दूध नहीं पिलाती है। अधिकार सब लिखित में है, लागू है कहने के लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में क्यों नहीं आता है? हमारा राष्ट्रपति भी हो गया, गवर्नर भी हो गया, एमपी भी हो गया, एमएलए भी हो गया, इसके बाद क्यों नहीं होता है? तो इसी का एक क्वेश्चन हमने आप लोग के सामने रखा था, है ना, इसका समाधान कौन करेगा? अभी तक हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाल रहे हैं, इसका समाधान कौन करेगा? हम लोग सोच रहे हैं एमपी करेगा, एमएलए करेगा, गवर्नर करेगा। हम लोग कभी इस बात को नहीं सोचे कि डेमोक्रेसी में एक वोट एक अधिकार है कि नहीं, एक वोट से एक अधिकार से ही सरकार बनता है। ये एक सब समझ, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हम चुन रहे हैं, क्या वो आपका आदमी है, क्या आपका विचारधारा से है? झारखंड के अंदर में देखिए, जिस समय झारखंड के अंदर जो बिल पेश होने वाला था 2001 में पैसा का, विक्टर माल्टो और हम दोनों जाके हर एक एमएलए का दरवाजा में हम लोग जेरोक्स कर करके डाल दिए कि ऑलरेडी ये 25 दिसंबर 1996, 24 दिसंबर 1996 को लागू है। इसको खाली बोलिए आप, ये लागू हो चुका है, इसमें नियमावली बनाना है। कोई हमारा एमएलए नहीं बोला आदिवासी का, नतीजा है 2001 वाला जो एक्ट हम एक्सेप्ट करना पड़ा। अब मेरे को बताइए कि इस विधानसभा से कोई एक्ट बन रहा है, वो गलत भी बन रहा है, क्या हमारा आदिवासी एमएलए तो है, वो क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तो ना हमारा आदिवासी एमएलए बोलता है, या वो समझता भी नहीं है। डिकू लोग इतना सजग है, वो पहले से उसको आपको पार्टी के नाम से वहां पर वो पेश करता है, सब थपथपा करके उसको मेज में साइन कर देते। तो गलती किसका हो रहा है? हम बार बार हम लोग महसूस कर रहे हैं कि सही व्यक्ति को हम चुनकर नहीं भेज रहे। अब सही व्यक्ति कैसे चुना जाएगा? इसलिए एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत है। चेंज की जरूरत कैसे है? जब तक मैं एक उदाहरण दे रहा था कि आज अगर संताल परगना का वोट पार्टी का वोट नहीं है, यह माझी परगना का वोट है, समाज का वोट है। मेरे उरांव समाज में पिछले 2019 से उरांव समाज भी पहले कोई बीजेपी को वोट देता था, कोई किसी को देता था, लेकिन 19 में हम लोगों ने चेंज किया कि समाज वोट देगा और सारा समाज से हम लोग क्लीन स्वीप किए। तो आगे अगर आपको लगता है कि हमको सारा चीज लेना होगा तो राजनीतिक चेतना पर काम करना पड़ेगा। राजनीतिक चेतना कैसे होगी? इसका एक उदाहरण हम आपको दिए थे कि आप हर आदमी को, आप सब यहाँ जो बैठे उसको समझना पड़ेगा इस समस्या का समाधान कौन करेगा। हमारा इस समस्या का समाधान हमें ही करना पड़ेगा। हम किसी एमएलए करेंगे, अरे एमपी एमएलए टिकट दूसरा पार्टी का ले रहा है,